राजेश शुक्ला पढ़ेगा भारत और जागो नारी का चीफ स्ट्रेटजिस्ट हूँ और हम इस समय हिंदुस्तान में करीब 1 लाख बच्चों को जो IAS एस्पिरेंट्स हैं एंड भारतीय सेना और हायर मिलिट्री सर्विसेज के हैं उनको चाणक्य एकेडमी और पढ़ेगा भारत के साथ मिलकर ट्रेंड कर रहे हैं। इस बार के भी IAS के रिजल्ट में 30 बच्चे हमने पास कराए हैं और आर्मी में करीब 150 बच्चे हमने सेलेक्ट कराए हैं। तो हमारा ये बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट हमारा मानना है कि जो धर्म है वो ज्ञान का केंद्र होना चाहिए और धर्म जितने धर्म सेंटर हो ज्ञान के केंद्र होना चाहिए और समता मूलक समाज बनना चाहिए। और बजाय बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के तो एक छोटा सा शब्द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बोला जाता, सीधी बात, नो बकवास, रिजल्ट विजिबल होना चाहिए। एंड हम आज यहाँ पे हैं और स्वामी जी के आशीर्वाद से, कनाडा से ये रिजल्ट आपको परसों से दिखने लगेगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे खाली પુરુષોત્તમ પ્રકાશ શાસ્ત્રી છે, સ્વામિનારાયણ મંદિર જયંતરપુરના મહાન છો અને આજે મહામંડલેશ્વર પદ જે પટ્ટાભિષેકનો જે કાર્યક્રમ છે એનો સંયોજક તરીકે મારી પસંદગી કરી છે અખાડા સમિતિએ અને ગુજરાતમાં જે કુલ 100થી વધારે જે દલિત ધર્મગુરુઓ છે એમાંથી 4ની પસંદગી કરી છે। એમાં સૌથી પહેલાં ભોગાવદરના મહંત છે સામળદાસજી મહારાજ, બીજા નંબરમાં છે ભાવનગરના કિરણદાસજી મહારાજ, ત્રીજા નંબરમાં છે થાનગઢના કૃષ્ણવર્ધનદાસજી મહારાજ અને ચોથા નંબર રાજપરાના છે એ પણ સામળદાસજી મહારાજ નામ છે। આ 4 સંતોની પસંદગી થઈ છે અને 30 તારીખે બપોરે 11 વાગ્યાથી 1:30 વાગ્યા સુધી 2.5 કલાકનો પ્રોગ્રામ છે અને આદરણીય રવિન્દ્રપુરી મહારાજ અને આદરણીય હરિગીરીજી મહારાજના વરદ હસ્તે આ સંતોનું ત્યાં પટ્ટાભિષેક થશે। એના માટે આખી આપણી જે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ જે વિધિ જે કુંભ મેળાની અંદર કરવામાં આવે છે એ વિધિથી અહીંયા એમનો અભિષેક થશે। પંચામૃતથી, દૂધથી, દહીંથી, સાકરથી, મધથી, ઘીથી આવી રીતે પંચામૃતથી એમનો અભિષેક થશે। પછી એમને જે નિયમ પ્રમાણે આખા જે સંસ્કારો કરવામાં આવશે એ સંસ્કારો કર્યા બાદ એમને ચાદર ઉડાડવામાં આવશે અને એમનું પૂજન કરવામાં આવશે આ બંને મહંતો દ્વારા અને ત્યાર પછી બધા જે મહેમાનો આવશે એ પણ એમનું પૂજન સંસ્કાર કરશે। ત્યાર પછી 500 જેવા સંતો મહામંડલેશ્વરો પણ બીજા આવવાના છે ગુજરાતના, તેઓ પણ આ બંને 4 સંતોનું બહુમાન કરી અને ચાદર ઉગાડી અને એમને અભિનંદન આપશે। ખાસ કરીને ગુજરાતમાં કેટલા મહામંડળ સાધુ સંતો જે ફરી શકે છે, તમે એક સર્વે કર્યો છે અને આપનું બીજું એવું કે જે આવા મહામંડળ બનાવવાથી ધર્માંતરણ રોકી શકાય છે। હા, હજુ આજે 100 જેટલા ગાદીઓના જે ગાદીપતિઓ છે એમાંથી હજુ જો 25ની સંખ્યામાં જો મહામંડલેશ્વરો બનાવવામાં આવે તો મારા ધાર્યા પ્રમાણે ગુજરાતની અંદર ઘણું બધું પરિવર્તન આવે અને જે સમાજ, જે સમુદાયને અન્યાય થઈ રહ્યો છે એ અન્યાયથી બહાર આવી શકે। ભારતની અંદર અત્યારે 1000થી વધારે મહામંડલેશ્વરો છે, એમાંના 50 જેવા તો આપણા ગુજરાતના જ મહામંડલેશ્વરો અત્યારે છે। ધર્માંતરણ જે તમે કીધું એ કઈ રીતે રોકી શકાય છે? એટલે જે સમુદાયને ન્યાય નથી મળતો ત્યારે બીજા ધર્મના લોકો એનો ગેરલાભ ઉઠાવે છે અને મિસગાઈડ કરી કે તમને ન્યાય નથી મળતો, તમે અમારા પાસે આવો, અમે તમને ન્યાય આપીએ। આવી પ્રવૃત્તિઓ તો તમે મીડિયા તરીકે જાણો છો એવી ચાલતી હોય છે, પણ આ ધર્મગુરુઓના એના ઉપર વર્ચસ્વ હોય છે અને ધર્મગુરુઓ એને સાચી માહિતી આપી અને આપણા સનાતન હિન્દુ ધર્મમાં એ લોકોને જોડી રાખવાના એમનો મોટો ફાળો રહેલો છે। આ કાર્યક્રમ માટે ગુજરાત જ કેમ પસંદ? એટલે જ્યારે અમે સાહેબ અને મહારાજ રવિન્દ્રપુરી મહારાજ અમે જ્યારે મળ્યા ત્યારે શરૂઆત ક્યાંથી કરવી તો એમાં દરેકનું મગજ અત્યારે આખા ભારતમાં ગુજરાતથી શરૂઆત બધી થાય છે એટલે એમ કહેવાય કે ગુજરાતમાં ચાલુ એટલે આખા ભારતમાં ચાલે।
એવી એક માન્યતા ખરી. मतलब अभी गुजरात इरा चल रहा है इस समय ना, जैसा एक समय था इलाहाबाद इरा चल रहा था, फिर जब जयप्रकाश नारायण आए तो पटना इरा चल रहा था, अभी इस समय गुजरात का इरा चल रहा है. तो गुजरात का इरा चलने से कुछ भी अगर आप गुजरात से शुरू करते हैं तो एक्सेप्टेंस कराना लोगों में और मोटिवेट करना लोगों में ज़्यादा आसान है. एंड उसके बाद स्वामी जी का जो सहयोग मिला, क्योंकि हम प्रयास तो 3 साल से कर रहे थे, स्वामी जी का जो सहयोग पिछले 8-9 महीने से मिला तो उससे हमारे लिए बहुत आसान हो गया. क्योंकि हमारा पहला ये था कि ये सिर्फ हम एक टोकन नहीं कर रहे हैं कि हम बुला के और आप पटका पहना दें और आप अपने विजिटिंग कार्ड पे लिख लो. हमारा पहला कमिटमेंट था कि आप महामंडलेश्वर बन के, महामंडलेश्वर आपको फील करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा. मतलब आपको अपना जो धर्म सेंटर है, आपको जो अपना मंदिर है, उसको ज्ञान का केंद्र बनाना पड़ेगा. वहां से रोजगार, जैसे अगर आप देखें वीरेंद्र हेगड़े की धर्मस्थली में साल का 6 लाख 7 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं. ऐसे और कई सारे आचार्य हैं, कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं. मतलब एक आचार्य, एक मंदिर की वजह से कारपोरेशन बैंक और सेंट्रल बैंक को स्कीम लाना पड़ा कि कोई भी आदमी अगर मंदिर में स्किल है तो उसको 25 लाख रुपए का लोन 6% पे दिया जाएगा. आज 8 लाख लोगों को लोन कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु में धर्मस्थली की वजह से लेना पड़ा. तो अगर धर्मस्थली कर सकता तो महामंडलेश्वर तो उससे बहुत बड़ा है. तो आपकी जो सबसे बेसिक समस्या है कि मैं इस गांव में हूँ या मैं इस कस्बे का हूँ और मेरे में टैलेंट है, तो बजाय मैं अपने टैलेंट को लेके मुंबई जाऊँ, बजाय मैं अपने टैलेंट को लेके अमेरिका जाऊँ, हमारा जो मंदिर है इसमें हम सब सुख में जाते हैं. जब सुख होता तो भी मंदिर ही जाते हैं, दुख होता तो भी मंदिर ही जाते हैं. तो वो हमें क्यों ना ट्रेंड करे. एक मंदिर अगर कोई चीज को आवाहन करता है उसके लिए फंड जुटाना भी बहुत आसान है. मंदिर अगर आवाहन करता है तो उसके छोटे छोटे जो स्किल है उस पे लोगों को विश्वास करना बहुत आसान है. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था गुजरात को सेलेक्ट करने का. एंड महामंडलेश्वर में फिर आपको बताऊं, हमारे लिए टोकन बिल्कुल नहीं है और हम इसको इस तरीके से बनाने भी नहीं देंगे जो विजिटिंग कार्ड तरीके को हो कि मैं महामंडलेश्वर हो गया और जहाज में जाते समय एक प्रोटोकॉल मिल जाए और आप लोगों को कभी खाने पे बुलाना है तो महामंडलेश्वर, हम सही बनने नहीं. બીજું મહત્વનું એ છે કે તમે જાણો છો કે વિશ્વનો મોટો મેળો કુંભ મેળો, જેને મહામંડલેશ્વર પદ મળે છે સંત મહંતને, એ લોકોને ત્યાં એ કુંભ મેળામાં એમનો એક આશ્રમ બનાવવા માટે એક જગ્યા એલોટ થતી હોય છે. मतलब आपको जान के हैरानी होगी कि जब आप महामंडलेश्वर होते हैं तो कुंभ मेला नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेश शुक्ला स्वामी जी. हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं. हिंदी एंड इंग्लिश चलेगा ना आप लोगों को? तो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक बहुत बड़ा सोशल काज को लेके. ये सोशल काज ऐसा था, स्पेशली मैं जब यूएस में पढ़ रहा था, उसके बाद जॉब शुरू किया, फिर इंडिया आया, तो बार बार आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी, बट कुछ ऐसी चीजें थी जो हमारे रिलीजन में, सनातन धर्म में, भारत के धर्म में थी जो बार बार पिंच करती थी. कि हम कई सारे देखते थे कि मंदिरों में आंदोलन हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं प्रवेश को लेके, कभी मठ के स्वामी बनने के लिए, कभी महामंडलेश्वर बनने के लिए. तो इस पे हम स्वामी जी से लगातार चर्चा कर रहे थे. 3-4 सालों से हमारी बात हो रही थी. फिर जो सनातन परिषद जिसको भारत सरकार मान्यता देती है, अखाड़ा परिषद, आपको मालूम है 13 अखाड़े हैं हिंदुस्तान में, जिसको शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की, भारत की रक्षा के लिए बनाया था. तो हम उनसे मिले, छोटे मोटे उनके मतभेद थे, बट रविंद्रपुरी महाराज जी जो अखाड़ा परिषद के चेयरमैन हैं वो आगे आए. तो ये डिसाइड हुआ कि हम एक गुजरात से शुरू करेंगे. गुजरात हमेशा एक ऐतिहासिक जगह होता है, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर बनाना हो, तो मतलब आप अपने कल्चर में अगर वापस जाना है
तो गुजरात और महाराष्ट्र इसमें हमेशा आपको रास्ता दिखाता है। तो हमने सोचा क्यों ना इसको गुजरात से शुरू किया जाए। सो ये बहुत हमने बात किया बहुत सारे बड़े अनुसूचित जाति जनजाति नेताओं से, तो उनके आंखों में आंसू आ गए। तो आप लोग परसों देखिएगा बड़े बड़े नेता आएंगे, उनके आंखों में आंसू आ गए। कोई बोलता है कि हमें शिरडी मंदिर में रोका गया, कोई बोलता है हमें तिरुपति में रोका गया, कोई बोलता है हमें विठल दास जी में रोका गया, कोई बोलता है हमें पुरी में रोका गया। तो हमने बोला कि शायद ये जो पहल हमने किया है, ये पहल से अब वो परेशानी खत्म। अब आप क्या है ओपन हो, अब आप कुंभ में आपका भी शाही यात्रा निकलेगा, आप भी महामंडलेश्वर होंगे, बट ये दोनों तरफ से होगा। अखाड़ा परिषद आया है तो आपको भी अपने को थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा। मतलब आपको पारिवारिक हितों से अभी अगर आप देखेंगे, स्पेशली मैं तो फील करता हूँ कि जो हिंदू धर्म के बहुत सारे मंदिर हैं वो क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखें हमारे पहले जो मंदिर थे वो ज्ञान के केंद्र थे, नालंदा था, तक्षशिला था, काशी था, ज्ञान का केंद्र था। दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। वैनसांग आया, फायान आया, अलबर्नी आया था, किकेहन लिखा गया, शिल्पाधिकरम लिखा गया, मणिमेखलाय लिखा गया, तो बड़े बड़े रामायण लिखा गया अयोध्या में। बड़े बड़े जो ग्रंथ थे, बड़े बड़े लिटरेचर थे, पढ़नी ने लिखा, पतंजलि ने लिखा, आचार्य चाणक्य ने लिखा, चारवाक ऋषि ने लिखा। तो बड़े बड़े जो ऋषि थे वो मंदिरों में रहते थे, बट आज मंदिर वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। तो आज हम आपके बीच में आए दो मुद्दे लेके। एक पहला सफलता हमें मिला जब सबसे बड़ी परिषद अखाड़ा परिषद एग्री की कि परसों यहाँ पे 4 बड़े महामंडलेश्वर अपॉइंट करेगी। ये आंदोलन हम लेके पूरे देश में जाएंगे। दूसरा हमारा लक्ष्य है अनब्लॉक द रिसोर्स एंड नॉलेज। मंदिरों के पास जो रिसोर्स पड़े हैं, मंदिरों के पास जो ज्ञान है, धन है, वो पब्लिक के पास वापस जाना चाहिए, जनता के पास वापस जाना चाहिए। ऑलमोस्ट जितने बड़े महाराज हैं स्वामी जी के मार्गदर्शन में, ऑलमोस्ट दे ऑल आर रेडी। आप देखेंगे परसों प्रोग्राम में बीजेपी के, कांग्रेस के कई बड़े नेता एमपी आएंगे और उनका आने का मकसद यही है कि ये अराजनैतिक मंच है, अराजनैतिक मंच है, आप आओ। हम लोगों ने अपने जिंदगी के, भगवान ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने का मौका दिया, मैकेंजी में जॉब करने का मौका दिया, 12-12, 15-15 कंट्री की स्ट्रेटजी में पार्टिसिपेट करने को मौका दिया। स्वामी जी 4 साल की उम्र में संन्यास लिए, तो आज उनकी कोई इच्छा नहीं है। आज स्वामी जी की एक ही इच्छा है कि हम दूसरों से बेहतर क्यों नहीं। और गुजरात को इसलिए चुना गया कि गुजरात एक आज पूरे देश में मॉडल के रूप में जा रहा। लोग गुजरात को फॉलो करना चाहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का बात होता तो लोग बोलते हैं गुजराती जैसा बनना। अगर मोरल की बात होती है, अगर इथिक्स की बात होती है तो लोग बोलते हैं गुजरात जैसा बनना। तो हम आप लोगों के बीच में आए कि आप लोगों को साथ लेके गुजरात से शुरू कर रहे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, सब जगह जाएंगे। और इसके साथ ही एजुकेशन में आपको परसों बड़े अनाउंसमेंट देंगे। जैसे हम भारत सरकार की सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग, हायर जुडिशरी सर्विसेज की ट्रेनिंग में ऑलरेडी हम 30 सेंटर चला रहे हैं। इस बार के भी IAS के रिजल्ट में 34 बच्चे हमने सेलेक्ट कराए। तो वो सेंटर गुजरात में लाना चाहते हैं और आई थिंक अगले 3 महीने में स्वामी जी के साथ मिलकर अनाउंसमेंट करेंगे। तो ये बेसिक है जिसके लिए हम आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब आपके जो सवाल हैं अब आप पूछ सकते हैं स्वामी। आदरणीय राजेश शुक्ला जी, राजेश शुक्ला जी जो NGO ચલાવે છે, NGOના ડાયરેક્ટર છે, એમને જે રીતે વાત કરી એ પ્રમાણે અમે છેલ્લા 5-7 વર્ષથી સંપર્કમાં છીએ અને વર્તમાન જે પરિસ્થિતિ આપણા દેશની સામાજિક રીતે, ધાર્મિક રીતે જે પરિસ્થિતિ છે એની ચર્ચા કરતા હતા। એમાં એક વાર એવો એમને એક વિચાર આવ્યો